Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining us here on Network 18 and News 18's Mission Pani. Two things. On a lighter note, I hope I don't look like this. I don't look like this 10 years down the line. I hope to look far younger. But on a more serious note, I hope and pray we never have to do a news bulletin like this. We never have to do a news bulletin like this a decade from now. Let's get conscious. Let us all make Jal Suraksha a Jan Andolan. And without much further ado, I'm going to request our very, very special guest, who, like always, has been the utmost professional, right here, on time, Mr. Amitabh Bachchan, who is also our campaign ambassador. I'm going to also ask Narasimhan Ishwar, VP, Senior Vice President and Managing Director, RB Hygiene and Home, South Asia, also with us to join us here. Thank you very much, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. And without much further ado, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमित जी, आप जब भी कोई मुहिम होती है जिसको कि जन आंदोलन बनाने की जरूरत होती है, आप सबसे पहले हाथ खड़ा कर देते हैं कि मैं इससे जुड़ूंगा, चाहे वो स्वच्छ भारत हो और अब ये मिशन पानी. आपका क्या मैसेज है, आपकी क्या सोच है कि कैसे इसको हम जन आंदोलन बना सकते हैं, इस जल आंदोलन को? मेरा मन हुआ कि इसमें जुड़ जाना चाहिए, सो जुड़ गए. और एक बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये. और मुझे लगता है कि ये न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही ऐतिहासिक एक निर्णय लिया है आपके चैनल ने. तो सबसे पहले आपको हम बधाई देंगे और शुभकामनाएं देंगे कि आपने इस मुहिम को उठाया है और इसके साथ जुड़ के काम करने में ये मेरा सौभाग्य. जिस दिन जल शक्ति अभियान का अनाउंसमेंट हुआ था भारत सरकार की ओर से, उस दिन हमने मिशन पानी को करने का ठान लिया था. बट आई हैव टू टेल यू दैट हैड इट नॉट बीन फॉर आवर पार्टनर्स, वी वुडंट हैव गॉट द काइंड ऑफ फिलिप, द मोमेंटम दैट वी एक्चुअली नीडेड. सो आई हैव टू थैंक यू, Nachi, and if I may call you that, everybody knows him as Nachi. He's Narasimhan Ishwar, but everybody calls him Nachi. So let me ask you, what is so special? Because for you, why did this cause attract you so much? Firstly, thank you very much, Anand, for having us here. Thank you very much, Bachchan sir, for coming and gracing this occasion with your presence and being the face of this hopefully historic campaign going forward. To answer your question specifically, we've always been associated as RB and Harpic with sanitation agenda. Ever since the Prime Minister gave the call a few years ago for Swachh Bharat, we've been focused on the sanitation agenda, whether it was the manual scavenger program where we did the Harpic World Toilet College or community programs for open defecation. When the Prime Minister gave the call for saving water, and we went back and took a look at what it means for the country and the situation that we're in today, it's similar to the kind of video that you showed. Yeah. The situation is precarious. And therefore we felt that as somebody who's championed sanitation and water are so closely linked that we said we must come together and try to do something. And that's when I think we started talking and came up with this idea to do Mission Pani. And I'm absolutely delighted and grateful that this day has come. Hopefully it's the beginning of something quite strong that brings the nation together. Well, it is about becoming water conscious. It is about the target of making India a water secure nation. Sir, आप जानते होंगे, but मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा जो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर and जो अभी इस broadcast को live देख रहे हैं, that India receives about 4,000 billion cubic meters of water, rainfall, every year. But we are not able to conserve or save less than 1/10. We are only able to get up to 300 billion BCMs of water. 300 BCMs of water is what we are able to save. आप बड़े से बड़ा डैम से लेकर गांव खेले में छोटे से छोटा अगर आप नहर देखें या फिर पॉन्ड देखें, रिजर्वायर देखें, जितना हम पानी बचा सकते हैं is only this much. And 89% of our water consumption is in rural India. अमित जी, कैसे हम कर सकते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं बाढ़ की सिचुएशन है, दूसरी तरफ सूखा है, ड्राउट है, ये कॉज है, और ये सिर्फ हमारे घर में शेव करते वक्त नलका बंद करने से नहीं शुरू होता है. इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ डिफरेंट कॉज, जहां पर हम हमारी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज की को वापस उसको पुनर्जीवित करना, जो वाटर पुरानी नदियां थी उनके रिवर फ्लोज को ऊपर करना, वहां से शुरुआत
करनी पड़ेगी हमें, छोटी मुहिम नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि जब इस तरह का कोई अभियान ये शुरू होता है, whenever we start something which is a campaign of this magnitude, taken interest by people like yourself, sir, and by the network, I think it spreads the message through the entire country. I believe and I hope that during the course of this campaign and during the course of the interviews and the discussions that we have, we will come to learn a lot more about the statistics and the needs that are required. अभी आपने बहुत सारे आंकड़े पढ़ दिए, ये मैंने अपने जीवन में पहली दफे सुना है। और इस तरह की चीजें जो हैं वो जब आम जनता को बताई जाएंगी, वो जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर भी पैदा होगा कि अगर ये स्थिति है हमारे देश की तो इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। एंड देयरफॉर आई जस्ट फील दैट everyone getting involved in something like this is of utmost importance. So from day one we've had a lot of support, not just from the Aam Janta but from corporates, from people like yourself who have lent so much of, whose opinion matters, जिनकी आवाज में वजन ही नहीं दम भी है, in the sense कि आप influence कर सकते हैं, लोग सोचना शुरू करते हैं जब आप जैसे लोग इस मुहिम से जुड़ते हैं। And we also have the government support. Right from day one, the Jal Shakti Ministry, जो पहली बार एक effort है, they have also joined us. With your kind permission, we'd like to play out a small campaign AV that sets up the entire story. And then we will have the Jal Shakti Minister Gajendra Shekhawat also joining us on the other side on this broadcast. So can we have the campaign AV, please? Just a bit. Well, as and when it's ready. But right now, I also have the Water Minister. There is the Jal Shakti Minister Gajendra Shekhawat with us. Gajendra Shekhawat जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़ी मुहिम है और नेटवर्क 18 रैकेट बेंकीजर की ओर से जो ये पार्टनरशिप है, ये एफर्ट है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और I'm so thankful and glad that the media group like TV18 has joined in such a big way to help out the mission of the government led by Narendra Modi ji to create awareness. And I do believe and as Honorable Prime Minister always says that this can happen only through a people's movement. जन जागरण से ही ये संभव है। पर एक बात बताइए मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बात बताइए कि इसको करने के लिए वी हैव टू ब्रिंग इन अ बिहेवियरल चेंज, क्योंकि अगर आप एक किसान की बात करें जो साल दर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी चावल उगाते आया है, चावल की खेती करता आया है या गन्ने की खेती करता है, तो उसके दिमाग में और हमारे दिमाग में परसेप्शन यह है कि चावल की खेती तब होगी जब पूरा जो कम से कम 1-1.5 फीट पानी होगा। पर अगर आप उसको जाके ये कहना चाहते हैं कि भाई ड्रिप इरिगेशन से हम ये काम कर सकते हैं, अगर चीन जो है 350 लीटर्स पर एकड़ पर चावल उगा सकता है तो हमें 5000 लीटर प्रति एकड़ खर्च करने की क्या जरूरत है? हाउ आर वी गोइंग टू ब्रिंग दिस बिहेवियरल चेंज? देखिए, बिहेवियरल चेंज, आदत में परिवर्तन करना सबसे मुश्किल काम ऐसा माना जाता है, लेकिन जो सफलता हमने स्वच्छ भारत मिशन में प्राप्त की है, 50-60 करोड़ लोगों का बिहेवियर चेंज करना, जिस देश में ग्रामीण आबादी में बहुत सारे सोशल टैबूज स्वच्छता को लेकर के जुड़े हुए थे, 60 करोड़ मतलब दुनिया की चीन और भारत के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी आबादी उतना हो, उसका जो है व्यवहार में परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज करने में जो कामयाबी मिली है, उस कामयाबी के कंधों में सवार होकर आज पूरा देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से लबरेज है और ये मानता है कि ये विश्वास करता है कि हम इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। मंत्री जी, आप हमारे साथ बने रहें। आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इन मिस्टर बच्चन एंड नची बैक इनटू द कन्वर्सेशन हियर। बिहेवियरल चेंज, you have been part of Swachh Bharat, you've been part of so many campaigns, even polio and other causes, social causes. How difficult or easy it is to bring forth a behavioral change, Mr. Bachchan? I think we have to persevere in whatever we want to say and push across to the people of the country. It took us 8 years to get India free from polio, and it wasn't an easy job, but we just carried on and on and on, using different methodologies, trying to pursue people right into the interiors of the country. I think something similar is being done in many other spheres as well, and we will have to do the same for this. I think as we go along, some of the statistics I keep repeating again and again, and some of the
factual details that what can happen to us if there is no water tomorrow, then that is a very dangerous situation. I've just done some promotions for your channel a little while ago, and we're doing some interviews. We met some very fine gentlemen and young kids, a young girl who in her school has taken up this project of wanting to save water, save rainwater. So it is, examples such as these that will help us in going forward. We were talking about somebody looking at, harvesting the rainwater, where to channel it. These are some of the efforts that we'll have to continue doing. Every individual will have to do something for it to count. Yes, I agree. And you're talking about people. हमारे यहाँ हमारे देश में जल रक्षक already हैं. Water warriors are there. Their stories have to come to the fore so that we are able to influence more people. I am very proud to announce that today, amongst all our water warriors and a few of them here, there is Mr. Kasturi Rangan. I don't know if he's already with us. He should be joining us in a short while from now. He has actually received an award, sir, at the CV World Water Week. At the Imagine H2O competition, he is among 228 partners. India has stood out in terms of an innovation and what they have been able to do. So they've already been awarded for what they are doing. There are others who are now making water a mission of their life, so their life's mission. We also have the Maharashtra Chief Minister, Devendra Fadnavis, joining us here on this broadcast. Devendra Fadnavis ji, thank you very much. मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ जुड़े हैं मिशन पानी में, जिस तरह से आप जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि न्यूज 18 का ये जो मिशन पानी है इन पार्टनरशिप विद रैकेट बेंकीजर, और इसमें जब अमिताभ बच्चन जी जैसे एक आवाज और एक शख्स जुड़ जाते हैं, आपको क्या लगता है? ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं सर, आप हैं वैसे मैं एक आम नागरिक हूं, बस इसी तरह मुझे सर जो आप ऐसे आम नागरिक हैं जो हमारे लिए बहुत खास है कि नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। लेट्स आस्क मंत्री जी। यस सर। मैं अमिताभ जी का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, देश के समाज के हित में जब भी कोई विषय आता है, अमिताभ जी हमेशा अग्रसर होते हैं। महाराष्ट्र में भी चाहे स्वच्छ भारत का कैंपेन हो, चाहे पुलिस का कैंपेन हो, चाहे टीबी मुक्ति का कैंपेन हो, सारे कैंपेन्स में अमिताभ जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसलिए उनका अभिनंदन भी मैं करता हूं। और हम सभी लोग उनके साथ साथ इस कैंपेन के एम्बेसडर्स के रूप में जुड़ेंगे, ये मैं वादा करता हूं। आपने तो ये देखिए, अब आप बताइए, आप कह रहे थे आप बहुत आम हैं, आप खास हैं सर। आप बताना तो सबको है, हमारे लिए थोड़ी पर मैं इनसे जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में आपने क्या किया है फडणवीस जी? व्हाट इज द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डन? क्योंकि हम हर साल ये देखते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अगर सूखा है तो कुछ इलाकों में बाढ़ है, कुछ इलाकों में पानी बहुत ज्यादा है, अधिक मात्रा में है, तो कुछ इलाके जैसे कैचमेंट एरियाज हैं वहां पर पानी कम हो जाते हैं। तो व्हाट इज महाराष्ट्र डन? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुंबई में 2100 MLD सीवेज ये रोज हम लोग समुद्र में डिस्चार्ज करते हैं। पिछले 3 सालों में मैंने स्वयं केंद्र सरकार के पीछे लगकर सीवेज ट्रीटमेंट के सारे डिस्चार्ज नॉर्म्स ये तय करवाए। मुंबई महानगर पालिका ने अब इसके टेंडर्स भी बुलाए हैं और एसटीपीज के माध्यम से ये 2100 MLD जो सीवेज का पानी है, इसको ट्रीट करके इसको इस्तेमाल में लाने लायक बनाया जाएगा और उसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जब एसटीपीज तैयार होंगे तो एक प्रकार से देश का वाटर रीयूज का सबसे बड़ा प्रकल्प और सबसे बड़ी मुहिम ये मुंबई में शुरू होगी। प्रधानमंत्री जी ने जो है बहुत सही कहा आपने फडणवीस जी। Please be generous with your applause. You don't need to be nervous. This is for all of us, ladies and gentlemen. So if you feel like applauding, this is your platform too. Please go ahead. Let me ask you this. From an आम आदमी, कहते हैं हर घर से शुरुआत होती है, तो आपके घर में क्या हो रहा है? मैंने से आपके घर, that is Reckitt Benckiser as a company, you as an individual, you as somebody who's spearheading, are you also going to be conscious about the water print? I think all of us have to be. हम सबको होना चाहिए। I think अमित जी ने बिल्कुल सही बताया कि हर कोई आदमी अगर एक बूंद बचाएगा वो सागर बन सकती है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर फॉर अस। हम इस प्रोग्राम में क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू डू इज बेसिकली रेज द अवेयरनेस ऑफ द इश्यू।
सब लोग को पता होना चाहिए कि क्या है इशू। ये अगर एक दिन हम करेंगे और अगले दिन भूल जाएंगे तो इट डजंट स्टे इन योर माइंड। वी हैव टू कंटिन्यूअसली कीप टॉकिंग अबाउट द वाटर इशू दैट वी हैव इन द कंट्री, sharing all the different statistics, sharing all the experts' knowledge, and raise the awareness. The second thing that we need to do is to make sure that when people's awareness has been increased, they're going to say, just like all of us, कि हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या होगा, आप बताइए कि हमको करना क्या चाहिए. So we also want to work to come up with tips and techniques that can actually help save water, which all of us can do in our homes, in the places where we work, where we go to work, in the fields, etc. And so therefore, driving behavior change. And the third area that I think is super important is, like you rightly said, to share inspiring stories of people who are doing great work. Because if you share those stories, those heroes feel like doing even more. Big people like ministers, bureaucrats, individuals, corporations all look at it and say, why can't we help them? And lastly, the common person, people like you and me, look at this and say, what can we do? Can we also add? Because there is a great movement. So let me interrupt you there and put you on the spot. We've got Harpic, one of your biggest brands, right there with Mission Pani. Does Harpic save water? Let me ask you this. Okay, so yes, the way it works is that, for example, as you know, Harpic is used in the toilet. It's used as a toilet cleaning fluid, and it's a specialized cleaner. So typically what happens in India is, if you look at the Indian style toilets, which is the majority of toilets in the country, there are not flushes. You have to pour water. The prevalent practice is to use detergents to clean the toilets. And detergents use 5 times the amount of water that a specialist product like Harpic does. So every time you are using Harpic, it just is formulated to basically save water. Now, as we go forward, hopefully we can do even better. But these products are built basically to save water because they are specialists. And unfortunately, in India, the habit is to use the detergents to clean the toilet, which is supposed to wash the clothes. Because the detergent is the first go-to. एक ही साबुन हर चीज के लिए और एक ही पाउडर हर चीज के लिए. That is something which is ingrained into us. जैसे मैंने कहा behavioral change, तो शेखावत जी, मैं जानता हूं आपके पास समय कम है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा. अब देखिए कॉर्पोरेट सामने आ रहे हैं. अमिताभ बच्चन जी जैसे शख्स हमारे साथ जुड़े हैं. जब हमने मिशन पानी लॉन्च किया तब बहुत सारे लोग हर तबके से, हर हल्के से जिंदगी के और पब्लिक लाइफ के हमारे साथ जुड़े हैं. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हर घर से शुरुआत और घर घर से शुरुआत ग्राउंड अप कैसे होगा, गांव से लेकर शहरों तक? देखिए, घर का पानी घर में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, शहर का पानी हम शहर में रोक सकें. जो कुछ धरातल पर रोक सकें वो धरातल पर, वरना धरातल के भीतर जो हमारे सबसे बड़े भंडार हैं उनके पुनर्भरण के लिए वो पानी उपयोग हो सके. इसके साथ साथ शहरों में जो आज घर से उपभोग करने के बाद निकलने वाला जो ग्रे वाटर है, जो बैदिंग के बाद में स्नानघर से निकलता है या रसोई से निकलता है, उसको ट्रीट करके यदि हम उपयोग करें. आदर्श स्थिति होनी ये चाहिए कि नहरों में ट्रीट किया हुआ पानी, चाहे वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से निकला हो उसको ट्रीट करके, या घर से निकला हो पानी उसको ट्रीट करके वो बहे खेतों तक जाए, सिंचाई के लिए काम हो, जल पुनर्भरण के लिए उसका उपयोग हो, और हमारी नदियों में स्वच्छ जल बहे. जबकि पूरी दुनिया में, केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में विडंबना यह है कि बहता पानी जो है, स्वच्छ जल, वो हम खेती के लिए नहरों के माध्यम से निकालते हैं, और सारा दूषित जल जो है वो बिना ट्रीट करके नदियों में डाल रहे हैं. इस स्थिति के परिवर्तन के लिए केवल सरकारें जो है वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकती जब तक प्रत्येक व्यक्ति इस दायित्व के बोध के साथ में न जुटे कि पानी बचाना, पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना और उपयोग किए हुए पानी को वापस रिसाइकल करके उपयोग करना. जी, हम सब लोग इस विषय के साथ जुटेंगे तो निश्चित रूप से न केवल भारत में बल्कि तो पूरे विश्व में जो है वाटर सिक्योरिटी प्राप्त की जा सकती है. बिल्कुल. भारत यदि वाटर सिक्योरिटी प्राप्त करता है, और जो इनिशिएटिव हमने लिया है, आप सब ने लिया है, टीवी 18 ने लिया है, ऐसा जो मिशन जो है, यदि इसके माध्यम से भारत यदि जल के दृष्टिकोण से सुरक्षा प्राप्त करता है, सामर्थ्य प्राप्त करता है, सक्षमता प्राप्त करता है, तो वो पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बनता है. क्योंकि दुनिया में भारत के पीछे पंक्ति में खड़े हुए देश जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो भारत को अपना आदर्श मानते हैं, और भारत में हुए ऐसे प्रत्येक परिवर्तन को
वो अपने आदर्श के रूप में देखकर अपने यहां लागू करने में सम्मान समझते हैं। बहुत सही कहा शेखावत जी, आपने बहुत सही कहा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने कुछ उदाहरण दिए थे मुझे, कुछ स्टेट, जब मेरी आपसे बात हुई थी, कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको एज पॉलिसी इशू कर दिया है कि कैसे आप अगर पानी का संचालन करेंगे, पानी को रोकेंगे, तो फिर आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। उसमें से एक के चीफ मिनिस्टर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस। दूसरे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, ही इज गोइंग टू जॉइन अस एनी मोमेंट नाउ। बट फडणवीस जी, आई वांट टू आस्क यू दिस, आप बताइए रूरल महाराष्ट्र में आपने क्या किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी की किल्लत वहां पर है। मुंबई की आपने बात की, आपने ये भी बताया कि ये इस पर गौर किया जा रहा है कि मुंबई में सोसाइटीज पर ये इसको कंपलसरी कर दिया जाए, पर रूरल महाराष्ट्र में आपने क्या किया है? ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए आपने कदम उठाए हैं, वहां गांव में जो नेचुरल वाटर रिजर्वॉयर्स हैं उनके लिए आपने क्या किया है? मैं न्यूज 18 को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि न्यूज 18 ने पानी का ये कैंपेन हाथ में लिया। मैं ऐसा मानता हूं कि देश में आज पानी के ऊपर काम करना अत्यंत आवश्यक है, और विशेष रूप से आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पानी को ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी माना है। हम लोग आज देख रहे हैं जिस प्रकार से सूखा पड़ रहा है, जिस प्रकार से पानी की किल्लत तैयार हो रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि आज हम सभी के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और विशेष रूप से जलवायु प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज के बाद एक ऐसी स्थिति है कि अगर आज हम काम नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वर्तमान तो होगा लेकिन भविष्य नहीं होगा। महाराष्ट्र में भी इसी बात को समझते हुए बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में हमने गांवों में जल संधारण के माध्यम से वहां पर ट्रीटमेंट का काम हमने किया। रिच टू वैली अप्रोच लेकर हम लोगों ने वहां पर करीब 5 लाख छोटे स्ट्रक्चर्स को तैयार करने का काम किया। आज 19,000 गांव महाराष्ट्र के ऐसे हैं जिन गांवों ने वाटर बजटिंग किया है, और उस वाटर बजटिंग के अनुसार वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स तैयार किए हैं, और पूरे साइंटिफिक अप्रोच के साथ आज महाराष्ट्र में यह काम चल रहा है। जिसके साथ साथ हमने करीब 1.5 लाख खेत तालाब तैयार किए हैं, और आज गांव स्वयं अपना वाटर बजटिंग करते हुए अपने आप को जल स्वयं पूर्ण कर रहा है। इसका परिणाम यह है कि सूखे में भी आज हम लोगों को कुछ न कुछ राहत इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से मिल रही है जी, और इसको एक बड़ा फोकस महाराष्ट्र की सरकार की ओर से दिया गया है। बिल्कुल। एंड देवेंद्र फडणवीस जी, मैं कहना चाहूंगा कि आपने ये कहा, जो मुहिम छेड़ी है कि फार्मर्स को ये कहा जाए कि आपको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, सब्सिडीज दी जाएगी अगर आप ड्रिप इरिगेशन से गन्ना उगाते हैं। ये इटसेल्फ इज अ बिहेवियरल चेंज, क्योंकि हम और आप ये सोचते हैं कि चावल जब तक पानी नहीं भरा होगा खेत में चावल नहीं उग सकता, बट ये वाटर रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं। ये भी मुझे नहीं पता था, ये भी ज्ञान मैंने अभी प्राप्त किया है जब मिशन पानी से जुड़े हैं और फिर इस पर रिसर्च हुई। देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वील हैव मिस्टर सदगुरु एंड योगी आदित्यनाथ ज्वाइनिंग अस एनी मोमेंट नाउ, and Sadhguru has been championing Rally for Rivers and Kaveri calling. But let me ask you this: you're from Chennai, and you've seen water crisis. You were telling me this, so why don't you share with our audience here what you saw in the 80s, and that still happens today, Yeah. despite Chennai as a city being water linked through canals. Yeah. So it was just a private conversation, but it's a bit embarrassing. But when I was growing up in Chennai, I was there till about 86 when I left to go to Banaras to study. But early 80s में there was a massive drought in Chennai. सब के घर में कुआं होता था, so we used to take water from the well. I still remember pulling water up. But about for 6 or 7 months, water completely stopped in Chennai, to the extent that there was zero water availability. And I remember my 2 sisters and I and my mother used to go down every morning in Chennai onto the street, and we used to wait for the metro water lorry to come. And the lorry guy would come and spray the water, as that is the only way he could distribute it to so many people. We would all stand with what we call kodam, which is like a plastic bartan, to catch the water. And if by some chance that day you are not there to collect the water, there is no water for the house.
no water for bathing, no water for toilet, nothing. So life has moved on for me from there, but I still remember those days, and I don't want those days to become a reality going forward. No, and not for anybody, because for us, by the Almighty's grace, life has moved on, but for a lot of them, it's not moved on. It's still the same scenario, despite 2 months later, Chennai seeing a situation of floods. Chennai is just an example. This is a reality with every city across our country, in every village. आज बाढ़ है, कल सूखा है. आपको क्या लगता है, कैसे इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं? अभी यहाँ आने से पहले आप चेन्नई की बात कर रहे थे, तो हमें एक ऐसे शख्स से मिले अभी, जो कि चेन्नई के वासी हैं, और उन्होंने ये हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात की. किस तरह उन्होंने बताया कि जब तक जो पानी जो बरसता है वो धरती के अंदर नहीं जा पाएगा, तब तक हमारे कुएं का जो स्तर है वो ऊपर नहीं आएगा. और कई बार जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुएं में से पानी निकाला जाता था, अब उसका स्तर जो है वो नीचे चला गया. बहुत सी ऐसी बातें बताएं, जैसे कि समुद्र तट पे जो बीच होता है, वो जमीन जो होती है, वो धरती जो होती है, वो पानी को खींचती है अंदर, और इससे हमारी जो पानी का स्तर है वो बढ़ता रहता है. लेकिन हुआ क्या है कि बहुत से जो कहने में थोड़ी सी आपत्ति, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, उन्होंने वहां पर हाई राइज बना दी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं. तो उससे क्या हुआ कि वो सीमेंट हो गया है जगह, और जो पानी जो है वो धरती में नहीं जा पा रहा है. बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि उससे हमें कोई ज्यादा आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर उसके ऊपर सीमेंट लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो पानी चला गया अंदर वो सुरक्षित है. सुरक्षित है जी. कहीं ना कहीं इस तरह की बहुत सारी बातें हो रही हैं और काम हो रहा है जगह जगह, लेकिन वो एक शख्स है और वो एक शहर में काम कर रहा है. हमें चाहिए बहुत सारे ऐसे शख्स जो बहुत सारे शहरों में काम करें. बिल्कुल. एंड आप लोग इत्तेफाक रखते हैं अमित जी की बात से? आप में से तो कई पानी में हमसे ज्यादा जानते हैं, जो अभी हमारे साथ यहां ऑडियंस में बैठे हैं. एक मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी अक्रॉस इंडिया, जहां कम से कम अमित जी अगर 40-50 फुट के नीचे जब आप खोदते हैं तो आपको एक परत प्लास्टिक की मिलती है. तो हमने जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर करके वो प्लास्टिक जमीन में जो चला जाता है, वो ये तो नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो वो परत ऐसी रहती है. तो पानी जो है, जो पहले नीचे चला जाता था, अब वो ऊपर से ही निकल जाता है. तो दैट इज वन ऑफ द अदर रीजंस व्हाई देयर इज नो ग्राउंड वाटर. द पर्सन ज्वाइनिंग अस राइट नाउ, योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. योगी जी नमस्कार. आप माइकअप कर रहे हैं. मैं बताना चाहूंगा कि 9 अगस्त को योगी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक दिन में 22 करोड़ पेड़ लगाए हैं. 22 करोड़ ट्रीज, प्लांटेड ट्रीज. और ये सारे हैं जो वाटर रिटेनिंग ट्रीज हैं, यानी कि बरगद के पेड़, नीम के पेड़, आम के पेड़, ऐसे पेड़ उन्होंने, पीपल के पेड़, ये उन्होंने लगाए हैं अक्रॉस उत्तर प्रदेश, ताकि जल को रोका जा सके. अब योगी जी एक बात बताइए कि ये तो आपने काम किया है, लेकिन एक ये कहते हैं ना, हर घर से शुरुआत होती है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के सभी जो सरकारी कार्यालय हैं वहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी, और रूरल उत्तर प्रदेश में कैसे इस मुहिम को आगे ले जा रहे हैं, जल जीवन, जल संरक्षण को, और हर घर जल? कि हमने हर सरकारी भवन में तो इस बात को अनिवार्य रूप से किया. 225 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास हमारे यहां या तो बने हैं या बन रहे हैं. इन आवासों में भी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, या फिर जो भी बरसात का जल संचय होता है उसको संचित करने की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर लागू की. अवेयरनेस के कार्यक्रम इस दृष्टि से चलाए जा रहे हैं कि भाई 100 स्क्वायर फुट से ऊपर का कोई मकान बनाएगा और नक्शा पास कराने के लिए जाएगा, तो उसके लिए एक अनिवार्य शर्त होगी कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को उसमें लागू करे. वाह. ये हमने जहां शहरी क्षेत्रों में प्रदेश के अंदर लागू किया, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए 2 व्यवस्थाएं लागू की, पेयजल में भी और सिंचाई की व्यवस्था में भी. पेयजल में व्यवस्था की, लोग पानी उपयोग करते हैं, लेकिन स्टैंड पोस्ट से पानी गिरता रहता है. एक तो पानी गिरे ना, अगर पानी गिर रहा है फिर उसको एक पौंड में सुरक्षित कर लें, जिससे पशुओं के लिए उसका उपयोग किया जा सके, या फिर चिड़िया पक्षियां उस पानी का उपयोग कर सकें, या फिर वो पानी एक जगह किसी जगह इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी का उपयोग हम खेती में वहां पर
लोग अपनी खेती में उसका उपयोग कर सकें, इसको हमने लागू किया है। दूसरा, हम लोगों ने इस चीज के लिए लागू किया है कि सिंचाई के लिए अब परंपरागत सिंचाई की व्यवस्था लागू करने की बजाय हम ड्रिप इरिगेशन में चाहे स्प्रिंकलर व्यवस्था को भी हम लागू करें। 1/3 सिंचाई की आवश्यकता उसके माध्यम से पड़ती है और ये सोचना गलत है कि धान की खेती या गन्ने की खेती में ड्रिप इरिगेशन संभव नहीं। मुझे लगता है कि ड्रिप इरिगेशन किसान की लागत को कम भी करता है और साथ साथ उत्पादन खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। हमने गन्ने की खेती में, धान की खेती में ड्रिप इरिगेशन के प्रयोग को देखा है, बहुत प्रभावी है, बहुत अच्छा है। कम सिंचाई में अच्छी पैदावार इसके माध्यम से हो सकती है और मुझे लगता है कि मौजूदा समय में जितनी हमारी क्षमता है, इस क्षमता से लगभग 2.5 से 3 गुना अधिक सिंचाई हम लोग उतने ही जल में कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने लघु और सीमांत किसानों को प्रदेश के अंदर ड्रिप इरिगेशन में जाने के लिए 90% तक सब्सिडी की व्यवस्था भी हमने इसके माध्यम से दी है। वाह वाह योगी जी, ये these are initiatives which are necessary at a government level for in terms of initiatives. योगी जी, मैं आपकी ओर रुख करूं इससे पहले मुझे बता रहे हैं कि सदगुरु जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सदगुरु जी, थैंक यू वेरी मच। You 2 years ago you started the Rally for Rivers and now you're now taking up the campaign called Kaveri Calling. Now Kaveri is a bone of contention for many decades now among states as to who will get the water, but nobody has ensured that the Kaveri has enough waters to provide for all the states. Why don't you talk us through this right at the first, because this is something which you've also just recently launched, and thank you for joining us here on Mission Pani. Namaskaram. Namaskaram, sir. Rally for Rivers was essentially an awareness program to change the policy of how we relate and treat our rivers in the country. So this movement went through 16 states. The chief ministers of all the states across political spectrum participated in the movement, and then it went to the we presented this to the Prime Minister. Within 2.5 months, Niti Aayog, after having put it through the scientific and the economic tests, sent it out as official recommendation for all the 29 states. About 4 states are going proactive in implementing this policy. Rest are in various stages of debate and discussion. As a part of this, we also launched an on-ground action program in the Yavatmal region, which is unfortunately known as the suicide capital of this country. For the Wagadi River, which is a 54-kilometer stretch, we are on ground implementing this. But now Kaveri Calling is a project which is in partnership with the farmers, with the government and with the larger civil society. What this project is about is, say, right now Kaveri has depleted over 40% in the last 50 years' time. In the last 50 years, we have removed 87% of the tree cover in the Kaveri Basin. Kaveri Basin accounts for approximately 83 to 85,000 square kilometers with about 120 streams and rivers which feed Kaveri as tributaries. Now, the biggest misunderstanding that people have is that people think river is a source of water, is a source of water, or a lake or a pond is a source of water. These are not sources of water. Absolutely. These are destinations to which water has come. 96% of the water in this country is monsoon water. I heard this, Sadhguruji, first from you, but not just Kaveri. Let me also tell our viewers that News 18 had done a special story on the Gangotri Glacier. It's gone back 19 kilometers. The Gangotri Glacier, source of the river Ganga, has gone back 19 kilometers over the last 3.5–4 decades. So it's a serious issue. Where is this? Why is the water not being replenished there? So we are looking at climate change. They all seem to be interlinked. Our use of plastic, reuse of plastic. I'm going to request all those who have a bottle of water today, the plastic bottle, think if you can use it again and see if we can reduce our plastic print too. We have to get conscious at every level. But Sadhguruji, you were the first person from whom I heard this. ज्ञानवर्धन, जब भी मैं आपसे बात करता हूं, लोगों से बात करता हूं, पानी पर तो होता है। मिनिस्टर साहब ने मुझे बताया कि 4000 BCM पानी गिरता है
but we save less than 300 BCM of water. You just said 96% of our water comes from the skies above. How can we make Jal Raksha a Jan Andolan? I'm going to come back to that again and again. How is it that each individual person, is it possible for us to contribute to that? Or do we have to leave it to the powers that be? That is the government of the day. Jo karega, sarkar karegi. Let the idea of Jal Raksha not mean exploiting everything. There is other life. This land, this water, this world is not just for human beings, there is also other life. So water has to flow. If you ask me, the ideal way is if 50% of the river water if we use, other 50% must go into the ocean. But with the present population pressure, if that is not possible, at least 25 to 30% of the water must go into the ocean. Why is this so? There is an ecosystem around the subcontinent. We have 7,400 kilometers of coastline. If this river water does not go in substantial quantities into the ocean, because of the nature of our substrata, the marine water will start coming in to the land. Wow. Looking at the rock structure, it can come up to 100 to 130 kilometers inland. If this comes, which is already happening in Tamil Nadu, 50 to 60 kilometers already inland, marine water has come, no agriculture is possible. Wells which had sweet water just 15 to 20 years ago are all salt water right now. In Gujarat, every year they're losing some 500 square kilometers of land to marine water coming in. So if this happens, India will lose 1/3 of its land mass to marine water. That is, the substrata will be filled with salt water, you cannot use it for anything. So it's extremely important that substantial amount of river water flows into the ocean. Do not think of more exploitation, think of revitalization. See how to implement revitalization of land and water, don't just think about how to exploit more, because you are not the only life who lives on this planet. Wow, Sadhguruji, please stay on with us. Before I go back to Yogi ji, Amit ji, you've been listening to all of them. The magnitude of it, even for me, is just sinking in, the task that we have as a people, as a country. Yeah, I think it becomes all the more important to listen to these very noble and worthy words and start thinking more seriously, start sharing this information where we work, in the environment that we move around in, talk to our children, tell them what is going to happen in the years to come, and slowly inculcate in them some kind of a culture which goes along with the thinking of these very noble people. It is a massive problem. It's like, you know, a disaster that has already started to happen. And if we don't control it and watch it, what he's talking about, the landmass erosion, is so evident. I can talk from personal experience, you know. We used to go to shoot our films in Goa. We used to stay in this hotel at the Fort Aguada, and there was a lovely beach, and we used to, you know, go and spend our spare time there. And a couple of years back, I just happened to go back there. There's no beach left. It's come right up to the hotel. And slowly all this erosion is taking place. And it's very disheartening to see all this thing happening. So somewhere all of us have to start making and doing things to preserve the water systems. True. Sorry, I'm throwing some more numbers, but here is some more. 6%, only 6% of the total water in our country, water consumption in our country, is done by urban India, or households, urban households. Another 5% by the industries. 89% is rural India, largely agriculture and the related activities to agriculture. And that's where the focus of the government so far has been, because this Jal Shakti Abhiyan talks about replenishing our traditional water conservation sources. If we go back to what our civilizations used to do in the past, it was all around conserving water, trying to hold back and store water, because water is life. योगी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप हमारे साथ जुड़े, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप, मुझे पता लगा है कि आपने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करके हमारे लिए वक्त निकाला है, ताकि आप यहां न्यूज 18 के मिशन पानी से जुड़ सकें, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात, हमारा जो न्यूज 18 नेटवर्क है, कम से कम 67 करोड़ या 70 करोड़ तक की जो भारत की जनता है, वहां तक हमारा ये मैसेज मिशन पानी का, जल रक्षा का पहुंचता है। इनको आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या एक ये कलेक्टिव लेवल पे मुहिम है? कैसे हम
जल प्रतिज्ञा, जल रक्षा को एक जन आंदोलन बना सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज 18 नेटवर्क को, और मैं सचमुच आभार व्यक्त करता हूं कि सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी एक बार कि तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा तो जल के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मुझे लगता है इससे पहले कि व्यापक जनसंहार हो, हमें जल संरक्षण की दिशा में जाना चाहिए, और आज सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दिशा में प्रयास और एक आह्वान कर दिया है और कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। मुझे दूसरा बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के बाद पहली बार जल से जुड़े हुए सभी विभागों को एकीकृत करके जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने गठित किया है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने यहां जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर दिया है। और हमने उसमें एक अपने योग्य मंत्री को उसका दायित्व दे दिया है। एक कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत करके आगे के कार्यक्रम को एक टाइम फ्रेम उनके सामने रख करके कह दिया गया कि इसको इस रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह कार्रवाई हमारे यहां प्रारंभ हो चुकी है। वास्तव में यह जल संचयन का कार्यक्रम, ये जल शक्ति का कार्यक्रम, यह जीवन को बचाने का कार्यक्रम है। मेरा यह मानना है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्लास्टिक के खिलाफ अभियान, जल संचयन के में जन सहभागिता और साथ साथ व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम तो इस बात को मानते हैं, वन है तो जल है और जल है तो कल है जी। ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इनको किसी को भी आप अपने इससे अलग नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन, कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होती है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि न्यूज 18 नेटवर्क इतना बड़ा उनका जो दर्शक वर्ग है, वह अगर इसके साथ जुड़ करके व्यापक जन जागरूकता के इस अभियान के साथ जुड़ता है, 70 करोड़ दर्शक अगर किसी एक अभियान के साथ जुड़ते हैं, वास्तव में वह उस अभियान को एक आंदोलन का रूप दे देगा। और जब जन आंदोलन बन जाता है तो उसकी सफलता में कोई संदेह कभी नहीं होना चाहिए, यह मैं कह सकता हूं। और मैं सचमुच आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं न्यूज 18 नेटवर्क को कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस अभियान को सफलता प्रदान कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जल संचयन के इस कार्यक्रम में भरपूर सहयोग करने को तैयार है। जहां भी मुझे लगता है कोई मीडिया ग्रुप या भी कोई भी संगठन इस क्षेत्र में आगे आएगा, सरकार उसमें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा टारगेट यही है कि जितने हमारे 70 करोड़ दर्शकों की जो रीच है, हम 70 करोड़ जल रक्षक जो जल प्रतिज्ञा लेंगे, ये हमारी मुहिम है, ये हमारा मिशन है और ये मिशन पानी जारी है। योगी जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आई हैव सदगुरु जी विद अस। सदगुरु जी, लेट मी आस्क यू दिस, द पंचतंत्र टेल्स, let's go back to our traditions. Panchatantra tales, simplified complex lessons in life. क्योंकि लास्ट में हम कहते थे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, तो जीवन को जीने का तरीका जो है ये किस्से हमें बताते थे। अब आप मुझे बताइए कि ये जो जल आंदोलन है, जल रक्षा की ये जो मुहिम है, ये बिहेवियरल चेंज की हम बात कर रहे हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी टेक दिस मैसेज टू द पर्सन ऑन ग्राउंड एंड एक्सप्लेन टू देम वेरी सिंपली व्हाई दे नीड टू बिकम अ जल रक्षक? Nearly 100% of our water source is monsoon. Monsoon and monsoon only. Only 4% is glacial water. Everything else is coming down from the skies. The water that comes down on this land must percolate this way, down, into our aquifers, into various other ways. It must go into the land. Right now it is running on the surface. It is running on the surface mainly because there is not enough vegetation. Only vegetation will make it go deeper inside. So if this has to happen, we must put India's land at least 1/3 under shade. Whatever kind of trees, whatever kind of vegetation you grow, but it must be under shade. Only then it will be organically rich and the roots will make sure the water percolates down. For this to happen right now, we have called for this Kaveri calling.
Kaveri calling, the idea of Kaveri calling is a demonstrable model, a demonstratable model that will be a sample for everybody else. This is not only for India, this is a game changer for the whole tropical world if we successfully implement it. Farmers are willing